Hello students of 9th standard. Today I am going to continue with the civics chapter. Civics का first chapter that is post world war political development, ये chapters का हम लोग स्टडी करेंगे, राइट? अभी टेक्स्ट बुक रीडिंग करने से थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम होगा, ज़रा टेक्स्ट बुक रीडिंग करना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली हिस्ट्री एंड सिविक्स सब्जेक्ट. तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करवा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जब क्लास चालू हो जाएगा नॉर्मली तो हम लोग टेक्स्ट बुक रीड करेंगे. अदरवाइज टिल दैट टाइम वी विल डू ओनली exercise solving. Okay, I am giving the answer of exercise only. Okay, so try to understand it. If you are getting any confusions please ask me. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहला है चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सवर्जन स्टेट इंटरनेशनल सिस्टम. सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सवर्जन स्टेट इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम. The main responsibility of United Nations to avoid war. Okay. Next is Cold War ended with the event disintegration of Soviet Union. These three multiple choice answer here. Multiple nahi. Choose the right. Again I am revising you. Choose the right option. System of independent and sovereign state is called international system. Main responsibility of United Nations is to avoid war. And third, the Cold War ended with this event, that is disintegration of Soviet Union. Now we'll go through the explain with reason whether the following statement are true or false. नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसके बारे में बताना है. लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट कोल्ड वॉर. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. The League of Nations was established after the first Cold War. This statement is false because यहाँ पे आएगा. The answer is given here. League of Nations was established after the First World War, not Cold War. First World War to establish peace. This will be the answer. League of Nations was established after the First World War to establish the peace. This will be the answer of first true false give reason वाला. Okay? तो आपको इतना ही point answer में लिखना है. Next is the world become unipolar due to the Cold War. World become unipolar due to the Cold War. And this statement is also false. Page number 60 पे इसका आंसर है. Actually proper sentence is not given, that's why I have written the answer. Due to Cold War the world become bipolar. Cold War की वजह से वर्ल्ड क्या बन गया? बायोपोलर, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. समझ में आया क्या? Due to Cold War world become bipolar. Okay, next is now come to the question answer. Explain the following concept. Cold War का मतलब क्या? पेज नंबर 60 पे इसका आंसर है. There was no open war between the two countries. दो कंट्रीज़ के बीच में ओपन वॉर नहीं होता. बट देयर वॉज सच टेंशन इन दैट रिलेशन दैट इट सीम टू बी वॉर इरप्ट बाय दैट एनी टाइम. मतलब ओपन वॉर तो नहीं होता लेकिन ऐसा कंडीशन बन जाता है कि वॉर बंद हो सकता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्चुअल वॉर बट देयर आर सच टेंशन इन सर्कमस्टेंस दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर. इज दिस क्लियर? दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट करो, ध्यान से देखो सेंटेंस. देयर वॉज नो ओपन वॉर बिटवीन टू कंट्रीज बट बिटवीन दिस टू कंट्रीज लिखा है. दिस की जगह पे क्या डालना? अमेरिका एंड सोवियत यूनियन. क्या डालना? अमेरिका एंड सोवियत यूनियन. तो देयर वॉज नो ओपन वॉर बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन कंट्रीज बट देयर वॉज सच टेंशन इन देयर रिलेशन. लेकिन उनके रिलेशन इतने गंदे हो गए थे कि दैट इट सीम टू बी दैट वॉर कुड इरप्ट एनी टाइम. इसका मतलब कैसे हो सकता है कि वॉर कभी भी हो सकता था. The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war. मतलब Cold War मतलब एक ऐसा condition जिसमें actual war तो नहीं हुआ है but there are such tension in circumstances. लेकिन कुछ ऐसा situation बन गया है कि that they may be responsible to cause war. लड़ाई कभी भी हो सकती है. Actually लड़ाई नहीं हुई लेकिन condition ऐसा बन गया कि लड़ाई कभी भी हो सकती है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Cold War. तो ये आंसर विल बी पॉइंट वाइज. आपको लिखना कैसे बता दे. तो पहला पॉइंट, there was no open war between America and Soviet Union countries. First point. There was no open war between America and Soviet Union countries. First point. Second. But there was such tension in their relation that it seemed to be war would erupt any time. Second point. But there was such tension in their relation that it seemed to that war could erupt any time. This will be the second point. Third point. Concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war but there are such tension in the circumstances that they may be responsible to cause war.
द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्चुअल वॉर, वहाँ पे एक्चुअल वॉर नहीं है, बट देयर आर सच टेंशन सर्कमस्टेंसेज दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर, लड़ाई कभी भी हो सकती है. इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट, पेज नंबर 61. इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर वाइल द वर्ल्ड हैज बिकमिंग बायोपोलर, बायोपोलर मतलब होता है वर्ल्ड, दुनिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, कोई सोवियत यूनियन के साथ था तो कोई अमेरिका के साथ था. ठीक है. इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर वाइल द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग बायोपोलर देयर वेर सम कंट्रीज विच डू नॉट वांट टू ज्वाइन द सुपर पावर राइवलरी. कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो किसी को उसने ज्वाइन नहीं किया था. सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर, वो ऐसे नेशन लोगों ने डिसाइड किया कि हमको कोल्ड वॉर से दूर रहना है. दे आर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट. उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन अलाइनमेंट. समझ गया? मतलब जिस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था, पूरी दुनिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी लड़ाई करने के लिए. राइट. किसी ने रूस को कनेक्ट किया था, किसी ने अमेरिका को ज्वाइन किया था, क्योंकि दोनों में सोवियत यूनियन और अपना अमेरिका में लड़ाई चालू होने वाली थी. तो किसी ने अमेरिका को ज्वाइन किया था तो किसी ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया था. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो किसी को ज्वाइन नहीं किए थे, वो ये कोल्ड वॉर से दूर रहना चाहते थे. उसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट. देखो यहीं पे लिखा, इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर वाइल द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग बायोपोलर देयर वेर सम कंट्रीज विच डू नॉट वांट टू ज्वाइन द सुपर पावर राइवलरी. सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी. देयर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट. इसको पॉइंट में कैसे लिखना है? पहला पॉइंट, इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर वाइल द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग बायोपोलर, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, देयर वर सम कंट्रीज विच डू नॉट वांट टू ज्वाइन द सुपर पावर राइवलरी. This is the second point. Third point, such nation decided to stay out of the Cold War. This is the third point. Their policy is known as a non-alignment. इसी को हम लोग नॉन अलाइनमेंट बोलते हैं. एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. In the period of Cold War, while the world was becoming bipolar, first point, there were some countries which do not want to join the superpower. Second point, such nation decided to stay out of the Cold War. Third point, their policy is known as non-alignment. Fourth point. So the total 4-point answer it is. Next is interdependence, page number 57. All countries of the world are depend on each other for one reason or other. मतलब जितनी भी कंट्रीज है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है किसी न किसी रीज़न को लेकर. हाउ एवर बिग प्रोस्पेरियस और डेवलप्ड नेशन मे बी इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट अबाउट ऑल दिस नीड्स. बड़ी से बड़ी कंट्रीज भी क्या है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है. इवन बिग नेशन हैव टू डिपेंड अपॉन द बिग एंड स्मॉल नेशन. बड़ी कंट्रीज़ को भी छोटे और छोटे से छोटे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. दस इंटरडिपेंडेंस एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है. इज दिस क्लियर? मतलब इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना. तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंट्रीज़ नहीं जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो. बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कंट्रीज़ भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. इसको ही बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट. तो ध्यान से सुनो. All the countries of the world are all the countries of the world are depend on each other for one reason to another. First point. However, big prosperous or developed nation maybe it can never be self-sufficient about all these needs. Second point. Even big nation have to depend upon the big and small nation. Third point. Thus, interdependence is an important features of international system. It will be the fourth point. Total 4-point answer it is. Okay. Next. Student, you have to complete as a homework for today. Choose the right option and rewrite the sentence. First question it is, second question, and it will be the third question. Okay. Then after you have to do the true false. मैंने 2 ही आंसर बताए हैं. ये आंसर मैंने पेंडिंग रखा है, बाद में बता दूंगा. फर्स्ट एंड सेकंड आपको आंसर बता दिए. एंड देन आफ्टर थर्ड का मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया. ओके. देन कंप्लीट टुडेज होमवर्क. फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू राइट द चूज द करेक्ट ऑप्शन 3 क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स के 2 क्वेश्चन और एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.